Good afternoon, dear friends. Today it is the first session which I am taking in the afternoon, and I am very much pleased that a lot of students they have joined. Despite of this is the fact that this is the odd hour for them because after lunch this is a sleepy time and they like to have a short nap. But in spite of all these odds, children you have joined, I am very much delighted with your presence. So today we are going to start with a lesson, aggregate demand and related concepts we will discuss. Actually, dear friends, the morning session we just talked that in flashback memories of this lesson, which starts from 1929 economic depression, and we have seen that how the economic depression has caused a lot of damage to the American economy, and as a result of that, um, economist or the government of that country approached the Jenkins, and Jenkins has given the model. That model was a new model which was contrary. It was just against of the classical belief, and the kind of model he gave it was just reverse or opposite of the classical way of dealing the economic problem, and that becomes the starting of a new era in the field of economics, and is the starting of the macroeconomics. So Keynes has focused on that the remedy of the economic recession of American economy is demand, not the supply side. Demand side, if demand we are going to generate, then it is going to solve the problem of recession. So actually, what he's tried to explain that it is not the supply is a real champion or the real hero to uh, change the economic scenario of the American economy, but it is a demand only which can bring the lot of changes in the economy. So his theory is known as aggregate demand theory, because aggregate demand is active. Every time he is talking to increase the demand, every time even if you compare with the present scenario which was just discussing in the morning session, what RBI governor Shaktikanta Das ji is doing, what reserve bank sorry finance minister Nirmala Sitharaman ji is trying to do, or different industrialists or the economists what they are suggesting, because they are not doing it their own, because the lot of suggestions from the different universities, professors, economists, they are consulting, and after consultation only the government makes the budget or the makes the plan. So here demand is trying, we are going to increase the demand so that इकोनॉमीज जो हमारा जीडीपी 23.5% के आसपास जो डाउनफॉल हो गया, नेगेटिव हो चुका है, तो उसको कैसे बूस्ट किया जाए, उसको कैसे ऊपर लेकर जाएं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और लॉकडाउन एक बहुत बड़ा, तो आज हमको इस लेसन में जो पॉइंट्स हमको सीखने हैं, पढ़ने हैं, इसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे अधिक मार्क्स का क्वेश्चन अगर किसी लेसन से आता है तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे चैलेंजिंग। वैसे तो सारे ही लेसन इंटरेस्टिंग है, जिस तरीके से आप पढ़ोगे उसको आपको लगेगा कि ये हमारे जीवन से कितना जुड़ा हुआ है। अब डिमांड कहते ही आपको मतलब आपने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई है किस तरीके से। अभी तक माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को देखा। अब हम जनरल प्राइस की बात कर रहे हैं, और वो स्टैटिक होता है, और हम इनकम रिस्पेक्टिव डिमांड की हम यहाँ बात करेंगे। तो डिमांड यहाँ फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा, और जबकि वहाँ पर हम प्राइस से तुलना करते थे, वो माइक्रो लेवल था। अब जनरल प्राइस लेवल है, और ये हम स्टैटिक इसको मानते हुए हम इनकम जैसे जैसे बढ़ता है उसके हिसाब से हम डिमांड को रिलेट करने का प्रयास करेंगे। वो हम आगे के चैप्टर में जहाँ उसकी जरूरत होगी वहाँ हम री एक्सप्लेन करूँगा। अभी तक आप इतना ही समझो कि हमको इसमें किन्स ने क्या फोकस किया। ये थ्योरी किन्स के द्वारा दी गई, हाँ, एग्रीगेट डिमांड की थ्योरी। सबसे पहले हम इस लेसन में हमको अचीव क्या करना है उसको पहले समझिए। इस लेसन में हमको ये जानना है, किसी भी लेसन के स्टार्टिंग में जैसे कोई मूवी देखने जाते हो तो आपको कहते हैं इंटरटेनमेंट
हमारा उद्देश्य था। कोई होता है कि उसमें थ्रिलिंग चीज़ें ढूंढता है, तो हर व्यक्ति के ढूंढने और देखने का तरीका अलग होता है। कोई पढ़ाई जॉब के लिए कर रहा है, कोई पढ़ाई नॉलेज के लिए भी कर रहा है, तो अलग तरीके। तो आपको इस लेसन को पढ़ने से पहले ये जानने की जरूरत है कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो हम इसलिए इसको पढ़ रहे हैं बेटा कि हम ये जानना चाहते हैं कि इकोनॉमी का वो लेवल कौन सा है इनकम का, जिसमें इकोनॉमी के जो सारे एलिमेंट है, चाहे प्रोडक्ट मार्केट हो, चाहे लेबर मार्केट हो, चाहे मनी मार्केट हो, कैपिटल मार्केट, वो सब इक्विलिब्रियम में हो। मतलब हम इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की चाहत रखते हैं कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आ जाए, ताकि जितनी भी वस्तुएं प्रोडक्शन हो रही हैं उसी हिसाब से लोगों की इनकम हो, ताकि इन्फ्लेशनरी कंडीशंस नहीं दिखाई दो, डिफ्लेशनरी कंडीशंस नहीं दिखाई दे। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो तो साइकिल आता रहता है, होता रहता है, लेकिन जो लंबे समय तक जो प्रॉब्लम आ जाता है वो नहीं हो। अगर मान लो इंडिया में पेंडेमिक है, अगर लंबे समय तक अगर माइनस में जीडीपी जाएगा, लंबे समय तक ये हो जाए, तो वो बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाएगी। और फिर लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, लड़ाई झगड़े, गृह युद्ध, ये सब सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए उन्होंने कहा था कि उस इनकम की तलाश की जाए जो इक्विलिब्रियम हो, जिसमें इकोनॉमी के प्रोडक्शन को, जो प्रोड्यूसर्स को भी सेटिस्फाइड कर दे, कंज्यूमर को भी सेटिस्फाइड कर दे। Can you find? और इन दोनों के बीच में जो बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, मतलब मनी मार्केट, हाँ, जो कैपिटल मार्केट है, उसको भी ये सेटिस्फाइड कर दे। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, चलिए हम कैपिटल मार्केट वर्ड ही यूज करते हैं। तो इस लेसन में हमको पढ़ना क्या है, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड की मीनिंग क्या है और उसके कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है। इसी तरह एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या है चीज़ें ये सब। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेविंग फंक्शंस, प्रोपेंसिटी टू सेव, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एंड सम क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ओके। तो ये चीज़ें कंपोनेंट्स ये जानने जरूरी हैं, इसलिए कि जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आप उस इक्विलिब्रियम के लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने मार्केट की इक्विलिब्रियम की बात की, और मार्केट की इक्विलिब्रियम मैंने बताया कि ज़िंदगी में हर व्यक्ति इक्विलिब्रियम की तलाश में, ज़िंदगी में इस पूरे इन्वायरमेंट में हर व्यक्ति की बात नहीं करो, फ्लोरा से लेके फौना से लेके लिविंग से लेके नॉन लिविंग तक लेके, सोलर सिस्टम में देखो सारा इक्विलिब्रियम का काम हो रहा है, सारा इक्विलिब्रियम में हो रहा है। अगर वो इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस होता है तो मतलब जो बहुत सारे मेटेराइड्स एस्टेरॉइड्स जमीन पर गिरते हैं, वो सब इक्विलिब्रियम के डिसबैलेंस होने की वजह से होते हैं, ठीक है। साइंस में भी आपने पढ़ा, जो मैं बताऊं कि सोडियम क्लोराइड का मॉर्निंग में एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को कि सोडियम और क्लोराइड, ऑक्टेट और डुएट का एग्जांपल, हाँ, ज्योग्राफी का एग्जांपल दिया कि कैसे एयर का और एयर हवा क्यों बहती है, क्योंकि देयर इज डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर, एयर प्रेशर में अंतर होता है, तो इस वजह से एयर का ब्लो होता है। तो ये जब बराबर हो जाता है एयर, जो प्रेशर बराबर हो जाता है तो वो एयर का ब्लो नहीं होता है, मतलब इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा तब तक ये हलचल बची रहेगी, मेरे माइंड। तो ये इक्विलिब्रियम बहुत जरूरी है। इसी तरह पढ़ाई में भी अगर जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, मन में हलचल बना ही रहेगा, तो उस हलचल को दूर करना बहुत जरूरी है, मेरे पॉइंट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको बेटा? थैंक यू, थैंक यू बेटा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। अभी तक केवल हम हवाबाजी, सॉरी हवाबाजी नहीं कहेंगे इसको, लेकिन चलो चलता है। तो अभी तक हम केवल हवाबाजी कह रहे थे, तो अब हवाबाजी से आकर अब हम मार्स की बाजी करेंगे, तो बाजीगर बनेंगे हम लोग मार्स का। तो कैसे मार्स में क्या क्या क्वेश्चन आता है, डिफिनीशन पहला है, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो ये एक मार्क का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस एक मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत सारे मार्क्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है, मेरे पॉइंट। तो हम इसको पढ़ते हैं आपके लिए। पेन होता तो मैं पेन से अंडरलाइन कर लेता, लेकिन इसमें पेन की सुविधा नहीं है। चलो, तो एग्रीगेट डिमांड, एडी, ठीक है, रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपके पास बुक है सामने तो उस बुक में अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। क्या है, एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा, बहुत ही प्यारा लेसन है। जब जब पढ़ता हूँ तो किंग्स के प्रति प्यार बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरी इकोनॉमी को बचाया, कितने लोगों को मरने से बचाया, कितने लोगों को रोजगार दिलवाया होगा, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अंडरलाइन, which all the sectors of an economy are planning, all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income, underline, given level of income during a period of one accounting year.
वन अकाउंटिंग ईयर तो आपको बार बार जो है बजट पढ़ोगे तब भी होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ोगे तब भी होगा। मतलब वन अकाउंटिंग ईयर तो समझ लो कि वैसे ही है जैसे आपके साथ आपका शैडो, ओके, आपके साथ आपकी परछाई, ठीक है, उसी तरह वन अकाउंटिंग ईयर, इन वन अकाउंटिंग ईयर आपके साथ चलता रहेगा। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year। ठीक है, तो इसको दूसरे शब्दों में अगर समझाने का इसने प्रयास किया, ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टू अंडरलाइन इट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में बोल रहा हूँ, याद रखना। जैसे ही मैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बोल रहा हूँ तो आपके सपनों की दुनिया में क्या आना चाहिए? इंटरमीडिएट गुड्स भी सर ने बताया था, मैंने पढ़ा था। अच्छा, इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में अंतर क्या था? ओहो, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? हाँ, याद आ गया, याद आ गया। तो ऐसे करके आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला फाइनल गुड्स, आपके दिमाग में आना चाहिए, ओ किस लेसन में पढ़ा था, किस लेसन में पढ़ा था मैंने? ओके ओके, हाँ, नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ा था। तो दैट इज द प्रिपरेशन। ऐसे बच्चे को पढ़ना चाहिए कि तुरंत रिलेट कर ले, अगर नहीं याद आ रहा है तो उसको अंडरलाइन कर ले, वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो, ओह मैं भूल रहा हूँ, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ब्रेन आपको इंडिकेट करता रहता है बेटा, ब्रेन को पढ़ना है। जैसे ही आपको ये लगता है ना, चेहरे आंखें जो है आप सिकोड़ लेते हो इसको, आईब्रोज वगैरह को, कि पता नहीं क्या याद नहीं आ रहा है, हाँ बड़ा तो था याद हो, तो ये समझ लो कि ब्रेन का इंडिकेशन है कि बेटा पढ़ ले, तू डेंजर जोन में जा रहा है। समझ रहे हो बेटा, पढ़ ले, तू डेंजर जोन में जा रहा है, ये ब्रेन का इंडिकेशन है। उसकी भावनाओं को समझना है, ब्रेन की भावनाओं को। अब वो जो नहीं समझते हैं ना तो वही गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स एडी इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। देखना, डिमांड हम बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, हम डिमांड बोल रहे हैं, देख लो, एग्रीगेट डिमांड बोल रहा हूँ और यहाँ एक्सपेंडिचर, हाँ, तो डिमांड फॉर एक्सपेंडिचर, मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स एडी इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर that different sectors of the economy are willing to incur during a given period। समझ रहे हो, हम दूध की डिमांड कर रहे हैं, मतलब दूध पर एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार है, ठीक है। हम किसी भी चीज की डिमांड कर रहे हैं मतलब उस पर एक्सपेंडिचर के लिए तैयार, ठीक है। तो डिमांड हम कर रहे हैं, तो ये देखो एक्सपेंडिचर के लिए हम अपना रेडी टू मेक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इट इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर that different sectors of the economy are willing to incur during a given period। वो तो अकाउंटिंग ईयर ही होगा। It means AD and aggregate expenditure means the same, okay। तो AD और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों का मतलब एक ही है, ये ध्यान रखना कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, मतलब हम एक किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, मतलब उस पर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। टोमेटो की डिमांड कर रहे हैं, मैं टोमेटो पे एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ। 5 किलो टोमेटो देना मतलब क्या? 5 किलो टोमेटो का पैसा देना। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो भाई। यू आर यू आर माई मोटिवेटर, यू आर माई मोटिवेटर, योर वर्ड्स मोटिवेट मी। समझ में आया? हेलो, बोल दे बेटा। हाँ, तुम ही बोल रहे हो, बाकी कोई नहीं बोल रहा। तान्या, तान्या, तान्या क्लास में है बेटा? हाँ बोलो बेटा। आयुषी, बेटा समझ में आ रहा है? हाँ तो बेटा थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करो, है ना। केवल टीचर ही थोड़ी मोटिवेट करता है ना। आप लोग अच्छा काम करते हैं तो आपके पेरेंट्स को मोटिवेशन मिलता है कि मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरा बेटा पढ़ रहा है ना। इसके लिए कुछ जो भी चीज़ आप डिमांड करते हो तुरंत हो जाता है। और जब बच्चे नहीं पढ़ते ना, मांगते रहते हैं, मम्मी पापा नहीं देते हैं, हाँ? पढ़ता लिखता नहीं है, खाली ये चाहिए वो चाहिए, है ना। चलो, तो एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी है इकोनॉमी का, ठीक है। सो
मतलब ये सारे सेक्टर्स की बात कर रहा है। हम मार्केट डिमांड में क्या होता है, इंडिविजुअल की बात करते हैं और एक ही प्राइस पर इंडिविजुअल के जितने भी डिमांड होते हैं उसको हम जोड़ देते हैं तो वो होता है मार्केट डिमांड हो जाता है। ये ध्यान रखना, समझ रहे हो, वो कंफ्यूज मत करना। यहाँ पर क्या है, पूरे सेक्टर्स का, जो भी सेक्टर्स है, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे प्रोड्यूसर सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे फॉरेन सेक्टर हो, जो भी सेक्टर है, ठीक है, तो सारे सेक्टर्स का ये डिमांड है। सो एडी इज द टोटल एक्सपेंडिचर, लास्ट बस तो नीचे की लाइन में है। सो एडी इज द टोटल एक्सपेंडिचर दैट ऑल हाउस होल्ड, देखो ये आ गया हाउस होल्ड, ये सेक्टर्स हैं हाउस होल्ड, ठीक है, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये चार सेक्टर एग्रीगेट डिमांड की यही कंपोनेंट है। अंडरलाइन कर लो, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। क्या क्या है कंपोनेंट, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ओके। सो एडी इज द टोटल एक्सपेंडिचर दैट ऑल हाउसहोल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर प्लानिंग टू इनकर ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। बोलो भाई, एग्रीगेट डिमांड और एक्सपेंडिचर एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू कह लो उसको, ठीक है। आर्गेटिव पॉइंट, बोलो भाई, बोलो, हाँ। और ये क्या है, लास्ट पॉइंट क्या मैंने इसमें निकाला कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या है। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहां से मिल रहे हैं, 3 मार्क्स आपको निकल के आ गया, ठीक है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, okay. So AD is the total expenditure that all household, firms, government and the rest of the world are planning to incur during a given period of time, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल क्लियर, मैं बुक से ही पढ़ा रहा है, एक लाइन आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। डोंट कंफ्यूज विद द एग्रीगेट डिमांड विद द मार्केट डिमांड, जो मैंने पहले बता दिया कि मार्केट डिमांड से एग्रीगेट डिमांड को कंफ्यूज मत करो, वो मिलाओ मत, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड ये वाइवा के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, वाइवा के लिए फेवरेट क्वेश्चन, वहां लिख देना वाइवा, ठीक है, जहां भी ये लिखा होगा उसको लिख देना वाइवा, ठीक है। ये तो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। सो डोंट कंफ्यूज एग्रीगेट डिमांड एंड मार्केट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज अ टोटल डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंटायर इकोनॉमी, ठीक है, इंटायर इकोनॉमी, समझ रहे हो, पूरे इकोनॉमी में। वेयर एज मार्केट डिमांड इज अ टोटल डिमांड फॉर वन कमोडिटी इन द मार्केट, कमोडिटी एक ही होती है, उस कमोडिटी को एक निश्चित प्राइस के ऊपर, हेलो, हाँ बेटा बोलिए, कुछ डाउट है, हेलो, बोला किसने, कोई किसने बात करने को प्रयास किया बेटा, कोई डाउट है, चलो, ओके बेटा, हाँ माइक ऑफ कर लो अगर नहीं डाउट है तो। चलो, तो एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड ऑफ फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ध्यान रखना, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इन द इंटायर, इंटायर इकोनॉमी को अंडरलाइन कर लेना, इंटायर इकोनॉमी। वेयर एज मार्केट डिमांड क्या इज द टोटल डिमांड फॉर वन कम्युनिटी इन द मार्केट, एक ही कम्युनिटी की वो डिमांड है और वो एक निश्चित प्राइस के ऊपर, एक प्राइस का अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो कि कैसे हम डिमांड को ड्रॉ करते थे, एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी डिमांडेड लिखते थे और वाई एक्सिस पर हम प्राइस लेते थे, ठीक है। एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी के अनुसार वो नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था और उसके साथ हम मार्केट डिमांड को डिराइव करने के लिए उसमें लिखते डिमांड ऑफ ए, फिर दूसरा एक और ड्रॉ कर लिया डिमांड ऑफ बी, तीसरा डिमांड ऑफ सी, और तीनों को जोड़ दिया हॉरिजॉन्टली तो वो डिमांड ऑफ एम बन जाता था। डिमांड ऑफ एम इज इक्वल टू डिमांड ऑफ ए प्लस डिमांड ऑफ बी प्लस डिमांड ऑफ सी। अगर याद आ गया होगा तो सो फार सो गुड, एक बार जाके देख लोगे तो और मजा आ जाएगा, ठीक है, तो हम मतलब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मार्केट डिमांड क्या है, एक वस्तु की डिमांड है, ठीक है, अलग अलग प्राइस के लेवल पर, ठीक है, जबकि ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड पूरे इकोनॉमी की डिमांड, ओके। आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, आज हम इतना ही पढ़ पाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड तक, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ें, सॉलिड पढ़ें, अच्छा लगेगा आपको।
तो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड ये क्या क्या है? द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर, कौन कौन से कंपोनेंट है भाई? तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको सी से हम डिनोट करते हैं। ओके, किससे डिनोट करते हैं? सी से, ठीक है। तो प्राइवेट, जिसको हम हाउस होल्ड कहते हैं, तो हाउस होल्ड की डिमांड जिसको सी से डिनोट करते हैं, इसी को हम तो कभी कभी क्या होगा, ऑप्शन में दे देगा, हाउस होल्ड भी दे देगा और प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी दे देगा। एग्रीगेट डिमांड इंक्लूड्स प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, और दूसरा देगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ठीक है। तो इस तरीके से आप जब मार्क करोगे ए प्लस ए एंड बी बोथ, ऐसे करके भी क्वेश्चन बनता है, ए एंड सी, पी एंड सी, नन ऑफ दिस, तो आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये अब ये क्या होता है? इट रेफर्स द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, किसके द्वारा? हाउस होल्ड के द्वारा। जब आप हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ा रहे थे तो हमने स्टार्टिंग क्या किया था, हाउस होल्ड और फर्म्स दो दिखाए थे, आपको याद होगा, है आपको याद है कि हाउस होल्ड इज अ सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, याद आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या, इट रेफर्स द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। उसके द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा, मतलब हाउस होल्ड में जो भी लोग हैं उनके द्वारा जो टोटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं जनरली। अब देख लो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, यहाँ इनकम वर्ड यूज किया गया है, जबकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या यूज करते थे? हम प्राइस यूज करते थे कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ता है, एम आई राइट? वेरी रॉन्ग, प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटता है, लेकिन प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ता है, अगर कहूँ तो पूर्णतया गलत भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गलत? आपको मुझे बताना पड़ेगा, इसको चैट बॉक्स में लिख देना या व्हाट्सएप करना मुझे ज़रा, मैं अभी इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको। कुछ खास परिस्थितियों में प्राइस बढ़ने पर डिमांड ही बढ़ता है। आयुषी के दिमाग में आ गया शायद। ओके चलो, तो जो मैंने बोला उसको ध्यान देना। ओके चलो, तो एक्सपेंडिचर हो गया, फिर से पढ़ लेता हूँ इसको, है ना। जनरली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल, है ना, जैसे होता है ना आजकल, डिस्पोजेबल सिरिंज को का यूज किया करो, जिसको डिस्पोज किया करो, है ना। तो वैसा इनकम जिसको हम खर्च करें, रेडी है, पैसा तो पॉकेट में बहुत है पांडे सर के पास, मान लो, नहीं नहीं बहुत नहीं है, तो तुम लोग हमको कब कैसे दोगे, ठीक है। तो मान लो पैसा तो है पांडे सर के पास, की कार खरीद लें, एरोप्लेन पर चढ़ जाएं, लेकिन पांडे सर तैयार ही नहीं है खर्च करने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो disposable expenditure is directly influenced by consumption expenditure is directly influenced by the level of disposable income। तो कंजम्पशन पर जो एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्टली किससे इन्फ्लुएंस होता है? डिस्पोजेबल इनकम, ऐसा इनकम जिसको हम तैयार हैं खर्च करने के लिए। गेटिंग पॉइंट? ऐसा इनकम जो हम तैयार हैं क्या करने के लिए? खर्च करने के लिए। मतलब आप, इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली बोल रहा है, अंडरलाइन करना तुम लोग मैथ्स वाले बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 10 तक सब लोगों ने ये सब वर्ड यूज किया है। एफ इजिकल टू एम ए, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ में आया था, ठीक है। तो आप लोग ये प्रोपोर्शनल वर्ड, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, याद आया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन सप्लाई और प्राइस के बीच में क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, मतलब ये डायरेक्टली, मतलब अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा, मतलब खर्च करने वाला जो इनकम है जिसको हम खर्च करेंगे, वो अगर इनकम बढ़ रहा है तो
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? दैट उसका एक्सप्लेनेशन दिया आगे की लाइन में, दैट इज हायर द डिस्पोजेबल इनकम मोर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ठीक है वर्षा, समझ में आया बेटा? वर्षा, वर्षा बेटा, हाँ देखो तुम्हारा नाम किताब में लिखा हुआ है। वाओ, एक बार और पढ़ देता हूँ। मतलब क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और डिस्पोजेबल इनकम में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इसी पॉइंट को लिखा हुआ है। द हायर द डिस्पोजेबल इनकम मोर इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा। देख लो, बहुत रेयर होते हैं जिनका नाम किताबों में छपता है। वेरी गुड। तो किन्स की थ्योरी में तो 12 आउट ऑफ 12 आना चाहिए वर्षा को। चलो आगे पढ़ते हैं। डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज which is available to households for spending on consumption and saving। ठीक है, तो किसकी इनकम की बात कर रहे हैं? डिस्पोजेबल इनकम। ये ध्यान रखना, वैसा वाला इनकम नहीं जो कि आप होर्डिंग कर रहे हो, तो बेकार के ही लोग करते हैं होर्डिंग। पैसे को घर में रखना, बैंक में रख दोगे तो क्या होगा, पैसा बढ़ेगा, उसमें से अंडे आएंगे। मतलब क्या, उसमें से सूद मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो पैसा बढ़ेगा। लेकिन घर में रख लें, ये तो बेवकूफ़ी हो गई, चोर आएगा चोरी कर लेगा। ठीक है, तो किन्स वो बेवकूफ़ नहीं थे। वो किन्स हमेशा से ही सट्टे वाले मार्केट में जो काम हर्षद मेहता ने किया, मतलब हर्षद मेहता ने गलत किया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। मतलब हर्षद मेहता पॉपुलर नाम है जिससे आप समझ सकते हो कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता था। ठीक है, तो वो काम किन्स भी करते थे। तो वो कहते थे कि saving hoarding is a stupid thing। Okay, so disposable income refers to income from all sources which is available to the household for spending on consumption and saving। इनकम के दो ही चीज हैं यार। इनकम पैसा करोगे क्या, या तो खाओगे या तो बचाओगे। ठीक है, बचाओगे ना, बचाने का मतलब घर में नहीं रखना है, बचाने का मतलब है मार्केट में। यही सेविंग, हमारी सेविंग जो हम पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, जो बैंक में रखते हैं, वही पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट लेता है और इन्वेस्टमेंट करता है। और वहाँ पर उन्होंने क्या कहा किन्स ने, जब आगे पढ़ोगे तो एस इजकल टू आई, तब इक्विलिब्रियम होगा इकोनॉमी में। इसलिए दो मॉडल उन्होंने दिखाया, ए डी इजकल टू एस उन्होंने बताया, और साथ ही साथ बताया क्या, एस इजकल टू आई। ठीक है, ए डी इजकल टू एस और एस इजकल टू आई, दोनों उन्होंने काम कहा। ठीक है, सेविंग इजकल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये सेविंग यहां पर ध्यान रखना कि वाई जो डिस्पोजेबल इनकम, वाई इजकल टू व्हाट, सी प्लस एस। यहां देख लो बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है ना। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वी आर डिस्कसिंग इज एक्स एंटी। ये प्लान्ड है। ठीक है, दैट इज प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्स आंटे क्या है, ये प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ठीक है, यहाँ जैसा कि आपने ऊपर देखा ना, यहाँ पर कि उन्होंने एक्स आंटे का एक कॉन्सेप्ट की चर्चा किया था। देखो देखो कहाँ गया, नीचे होगा, हाँ, एक्स आंटे एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जिसके भी हम बात कर रहे थे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो एक्स आंटे का कॉन्सेप्ट और एक्स पोस्ट का। एक्स आंटे मतलब जो प्लान्ड है, एक्स पोस्ट मतलब जो एक्चुअली हुआ है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दो अप्रोच आते हैं इनके, किसके, एडी और एएस अप्रोच। देखो एग्रीगेट डिमांड से स्टार्ट किया ना, और यहाँ पर देखो बीच में एग्रीगेट सप्लाई एएस भी कहीं लिखा होगा, है ना, कहाँ नहीं लिखा है क्या, लिखा होना चाहिए, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एग्रीगेट सप्लाई, देखो लिखा है ना 7.2 एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ये दो अप्रोच है, एडी और एएस अप्रोच है, और एक है एस और आई अप्रोच। ठीक है, तुम फिर दोबारा आते हैं, बहुत आराम से चल रहे हैं बेटा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको तैयार कीजिए कि 12 आउट ऑफ 12 सबका आ जाए। ठीक है, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वी आर डिस्कसिंग इज एक्स आंटे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, एक्स आंटे। ये एक 1 मार्क्स से क्वेश्चन एमसीक्यू, आपको एमसीक्यू जब से आया तब से हम लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, वैसे हम इस तरह नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, अपना पीपीटी बनाया पढ़ा देते, लेकिन जब ये लेसन है, बिना लाइन बाय लाइन पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा, रिलेट नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। तो ये क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है,
एक्स आंटे, ये 1 मार्क क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। दैट इज सी इंडिकेट्स व्हाट, प्लांट एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्लांट मतलब एक्सपेंडिचर मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से मतलब है प्लांट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, एक्चुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बोथ, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब जब तक इसको पढ़ नहीं रहोगे केयरफुली यू कैन नॉट डू, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अभी तक आपने क्या देखा, हाउस होल्ड देखा, है ना, प्राइवेट कहाँ गया, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड के, एक कंपोनेंट आपने पढ़ लिया। तो बोलो बोलो धन्यवाद भाई, बोल दो भाई, थैंक यू। चलो हाँ हाँ, मैं ही थैंक यू बोल देता हूँ। यू आर सो साइलेंट, है ना, ऑनलाइन में कितना साइलेंस होता है। भगवान करे आप लोगों को ये सद्बुद्धि ऑफलाइन में भी आ जाए। चलिए, तो क्लास में तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दूसरा यह है कंपोनेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई से डिनोट किया इन्होंने। इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर, ध्यान रखना, वहां टोटल कंजम्पशन के ऊपर एक्सपेंडिचर था, यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इट रेफर्स द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स, अंडरलाइन करो, ऑल प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स, अंडरलाइन करना, कैपिटल गुड्स। अब ये यहां पर कंजम्पशन की बात नहीं है, कैपिटल को अंडरलाइन कर लीजिए, कर लिया, कर लिया अंडरलाइन, वेरी गुड। तो इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स, ऑल प्राइवेट फर्म्स मतलब ऑल प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। इट इंक्लूड्स एडिशन टू द स्टॉक, ये डिफिनीशन हो गया इन्वेस्टमेंट का। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल एसेट्स। अब क्या क्या एग्जांपल देखो, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल कैपिटल एसेट्स। क्या करोगी तान्या, नंदिनी, दिलसाद, सुरजीत, बेटा, तो ये लिख दोगे आप लोग, खट से पढ़े रहोगे तो तुरंत लिख लोगे, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग्स एटसेट्रा, चेंज इन इन्वेंट्री, ये सब इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो ये आपको याद, इट इंक्लूड्स एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल एसेट्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एटसेट्रा एंड चेंज इन इन्वेंट्री। ये सब आपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में भी देख लिया। फॉर सिंप्लिसिटी, it is assumed in our study that investment expenditure is autonomous। investment expenditure क्या है, autonomous, self decided, किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं। that is investments are not influenced by level of income। मतलब अभी आपने देखा कंजम्पशन क्या है, ये ऑटोनोमस नहीं है, कंजम्पशन इज नॉट ऑटोनोमस। लेकिन यहाँ क्या वर्ड किया जा रहा है, दो कंजम्पशन के लिए हमने क्या लिखा था, इन्फ्लुएंस बाई, कहाँ लिखा था, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखो यहाँ लिखा है, ये लास्ट लाइन, जनरली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। यहाँ क्या लिख रहा है देखो, इट refers to the total expenditure incurred by all private firms and capital goods। It includes addition to the stock of physical capital such as machinery, equipment, building, etc. and change in stock। For simplicity, it is assumed in our study, assumed है in our study, assume किया गया है in our study that investment expenditure is autonomous। ठीक है, that is investments are not influenced by level of income, लेवल ऑफ इनकम के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। आर गेटिंग पॉइंट, समझ में आ रही मेरी बात, बोलो भाई। ठीक, ओके, चलो अभी हमारे पास, हाँ बोल बेटा। अरे बेटा, जैसे सामान परचेज करते हो, सामान का जो स्पेयर पार्ट्स है सब इन्वेस्टमेंट, उसको रिजुविनेट करते हो, उसका सब जो मशीनरी खरीदते हो तो उसका स्पेयर पार्ट भी तो लगाते हो, टूल्स वगैरह जो बहुत सारी मशीनरी लगाते हो, हाँ बिल्डिंग्स वगैरह सब तो इन्वेस्टमेंट ही है। जो भी हमारे स्टॉक में वृद्धि कर देता है, इन्वेंट्री आपने पढ़ा ना, इन्वेंट्री, हाँ हाँ, चेंज इन स्टॉक, ये सब इंक्लूड होता है इसमें, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। ओके, जो भी हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को, देखो सिंपल लैंग्वेज में बोलो, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देता है। चाहे आप बिल्डिंग करो, आप
बना लो, चाहे आप मशीनरी खरीद लो, सब प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, ओके ओके। फॉर अब आते हैं हम तीसरे कंपोनेंट के ऊपर। अभी तक हमने कितने कंपोनेंट पढ़े? दो कंपोनेंट, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर की बात किया हमने। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज सब प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ नीचे, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन अंदर जरूर लिखा होगा, प्राइवेट फर्म्स प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया ना बेटा। ठीक है, तो गवर्नमेंट, अब एक्सपेंडिचर बात करते हैं। गवर्नमेंट भी कम रोल नहीं करती है, गवर्नमेंट भी बहुत स्मार्ट होती है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, दोनों के ऊपर, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर भी और कैपिटल गुड्स के ऊपर, टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की कॉमन नीड्स। कहीं कहीं गवर्नमेंट प्रोड्यूसर का भी काम करती है, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हर जगह प्रोडक्ट प्रोड्यूसर के रूप में भी काम कर रही है। और वहां पर भी बहुत सारे इक्विपमेंट परचेज किया जाए, सब कुछ तो कैपिटल गुड्स हो जाएगा, वहाँ मशीनरी आ रही है। ठीक है, और कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, पब्लिक गुड्स का नाम सुना होगा आपने, पब्लिक गुड्स जिसे गवर्नमेंट जैसे मान लो कि जो सबके लिए यूज हो, पब्लिक गुड मतलब जिस पर सबका अधिकार हो, वो गुड्स पब्लिक गुड्स की जाती है। पार्क है, पब्लिक गुड है वो। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये सब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, सो इट रेफर्स द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। कॉमन नीड्स अंडरलाइन कर लेना, कॉमन नीड्स, क्या क्या अंडरलाइन करना है? इट रेफर्स द टोटल एक्सपेंडिचर, तो होगा ही, जहां जहां टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स अंडरलाइन कर लेना, एंड कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द कॉमन। टाइम हो गया मुझे मालूम है ना बेटा? क्या? ओके, तो अब सारे बच्चे तो बेटा वो सुभाष डे नहीं परचेज किए ना, मैं सुभाष डे से ही पढ़ा लूंगा। ठीक है, ओके बेटा। कुछ बच्चों ने किसी किताब को लिया, किस किताब को लिया, मैंने मैंने कहा था एक किताब परचेज करने के लिए, इसीलिए ना। कुछ बच्चों ने कहा कि सर मैंने ये ले लिया, तो मैंने इस किताब को उठा लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये सारी किताबें, आप तानिया बोल रही थी ना? हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं, आप वो बोलोगे तो मैं उसके आपके लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है। दिक्कत हो रही है क्या आपको? हाँ, दिक्कत हो रही है? नहीं नहीं, दोनों बुक अच्छी है बेटा, उसमें क्वेश्चंस बहुत, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बुक है वो। देखो जो टीचर पढ़ाएगा ना वही बुक अच्छी लगने लगी, ये तो मान लो। अच्छा, उस दिन मैं उसको पढ़ाऊंगा, चलो कोई बात नहीं। इट मीन्स गवर्नमेंट इनकर्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इट मीन्स क्या है? गवर्नमेंट इनकर्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? कंजम्पशन भी एक्सपेंडिचर कर रही है और इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों नाम आ गया यहाँ पर? क्योंकि कैपिटल गुड्स आ गया। और कंजम्पशन देखो बाय डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, तो नीचे इसलिए आ गया है। इट मीन्स गवर्नमेंट इनकर्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो वो देखो कंज्यूमर गुड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। रिमेंड, एक ही लाइन है लेकिन उसको लिखते लिखते, उसको कई तरीके से लिखने से, एक्सप्लेन करने से नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ गई है। ठीक है, अब उसको हाईलाइट उन्होंने कर दिया, क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू मीट पब्लिक नीड्स, लाइक जो मैंने पहले बोला, पब्लिक नीड्स लाइक लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस एटसेट्रा। बिल्कुल क्लियर है ना? बोलो भाई। ओके, चलो। अब दूसरा है पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज। अभी 2009 और प्रीवियस गवर्नमेंट से इस गवर्नमेंट का एक तुलना करके एक डेटा आया था, 2009 से 14 तक 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर पर डे रोड का कंस्ट्रक्शन होता था। और अभी का जो डाटा है, 2021 का जो डाटा है, 34 किलोमीटर पर डे रोड का कंस्ट्रक्शन
बहुत सारे लोग काम करते हैं बेटा, लेकिन इस समय जो हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, इनका वर्क डायनेमिक वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में इन्होंने जैसा काम कर दिया, आगे आने वाले किसी भी मिनिस्टर के लिए, किसी भी मिनिस्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अभी सरकार ने बहुत सारे पोर्टफोलियो को चेंज किया, बहुत सारे मिनिस्टर के पोस्ट को चेंज किया, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी बदल गए, अब धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, पहले निशंक जी हुआ करते थे। तो ये इनके पोर्टफोलियो को नहीं चेंज किया। क्यों नहीं चेंज किया? कि इज द हाई परफॉर्मर इन दिस गवर्नमेंट। ओके, तो रोड की बात आ गई अचानक, इसमें हाईवेज की बात आ गई तो मेरा दिमाग वहां चला गया। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, रोड्स, पावर प्लांट्स एक्सेट्रा। और जानते हो कि चाइना में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा क्यों हुआ? कि चाइना ने इसी सेक्टर पर फोकस किया। 1991 में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो ला दिया, लेकिन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस नहीं किया था। आनंद फानन में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ला दिया और उसका फायदा ही हमको नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। ऐसा नहीं कि डेसिमल हुआ, लेकिन जो मिलना चाहिए था जिस अमाउंट में, वो नहीं मिला, क्योंकि आपने सड़कें नहीं अच्छी बनाई थी, आपने पावर सेक्टर में चेंज नहीं लाए थे, आपने और जो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर हो सकते थे, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, इन सब में परिवर्तन नहीं लाया। आर गेटिंग पॉइंट? समझ लो मेरी बात? तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज, रोड्स, पावर प्लांट्स। अब ये सारी बातें क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि देयर इज अ रोल ऑफ एग्रीगेट डिमांड में, इन सबका रोल है। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए इन सबका रोल है। ये सारे कंपोनेंट हैं, इन सारे कंपोनेंट पर अगर ध्यान दिया जाए, आज अगर आप पेंडेमिक का सिचुएशन को ध्यान दो, आज के पेंडेमिक को अगर बदलना है, चेंज करना है, तो आपको हाईवेज पर ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? हाईवेज में जब कंस्ट्रक्शन करोगे, उसमें जो लेबर काम करेंगे, इंजीनियर काम करेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलने का मतलब क्या है? परचेजिंग पावर आएगी। परचेजिंग पावर आने का मतलब क्या है? वो एक्सपेंडिचर करेंगे। एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर दूसरे का इनकम होता है। सोच लो कितना रोजगार क्रिएशन हो रहा है। यही काम रोड पर होगा, यही काम पावर प्लांट्स पे होगा। मतलब गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है इकोनॉमी को रिसेशन से बचाने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। चलो, अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ आ चुके हैं, इसके बाद मैं वाइंड अप कर दूंगा, क्योंकि दिमाग है छोटा सा, ओके, और काम बहुत बड़ा हो रहा है।